वेल हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हाल आप लोगों का? हाउ आर यू ऑल? Yesterday, due to some technical issues, we could not create the session for you yesterday. So आज मैं आया हूँ दोबारा आपके पास, and what we will do today is partly we'll cover yesterday's, because yesterday was a very important day और मैं चाहता था कि हम भगत सिंह की बात करें। कल बहुत इंपॉर्टेंट डे था, शहीदी दिवस था। खैर लोग तो डीपी लगा के आप भूल गए होंगे, बट व्हाट हु वाज दिस मैन भगत सिंह, व्हाट वर हिज आइडल्स एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही वाज। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी लास्ट ईयर, यू कैन हैव अ लुक एट दैट। बट मोर देन दैट, his life, his times, and the kind of person he was, तो उस पर बात करेंगे। And today is 24th March. Today is 24th March, so we'll cover both the days, 23rd and 24th March. ठीक है? So I hope we are live. If you are live, let me see you all. Yeah, we are live. जय हिंद, जय हिंद। मैं जरा बंद कर दूं इसको। जय हिंद to all of you. Good to see Rohit, Diksha, Abhishek, Soni, Vansh, Suraj. Good to see you all. So today was 23rd March, and it was 92nd anniversary of the brutal hanging of Shahid Bhagat Singh, Rajguru, and Sukhdev. ठीक है? In Lahore Central Jail. It took place on 23rd March 1931. मैं फिरोजपुर में, I've been to फिरोजपुर, that place number of times, जहां इनकी समाधि है, and the place where the bodies were taken out from the Lahore Central Jail at midnight, because उनको खतरा था कि लोग इकट्ठे हो जाएंगे, and then they were cremated on the banks of the river there. और मैं आपको पूरा मतलब I've been to that place, is more important than any temple, more important than any temple of modern India. बहुत बार गया हूँ, बचपन से गया हूँ वहाँ पे फिरोजपुर में. It's right on the border, right on the you can say the ditch come बंद आगे है, and there's a river, there's a bridge which connects. It was blown up in 71 war. It's been reconstructed now, तो बहुत बड़ा हो गया. So उसकी बात करेंगे. So सबसे पहले I want to speak about Bhagat Singh. Yesterday was his death anniversary. There were two amazing articles. On him, on what kind of person he was. So, जो लोग आज उसकी डीपी यूज करते हैं, जो उनके नारे पे प्रोग्राम करते हैं, फंक्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं, very very minuscule number of people understand who this person was. Firstly, you must understand he was a revolutionary, and he was socialist in his thinking. He read Lenin, he read Karl Marx, and he believed in distribution of wealth equally. और कमाल की बात क्या थी, he was an atheist. In fact, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो उनका आर्टिकल है वो है वाई आई एम एन एथिस्ट. अगर आप गूगल सर्च करोगे तो मैं भेज दूंगा आपके पास लिंक, उसका अवेलेबल है, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन उसकी अवेलेबल है. ही रोट दिस आर्टिकल व्हेन ही वाज इन जेल, एंड फॉर हिम व्हाट वाज, ही वाज अ प्योर सेकुलरिस्ट, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेकुलरिस्ट वाज शहीद भगत सिंह एंड ऑल हिज फ्रेंड. जो भी उस क्रांतिकारी उस जमाने में थे, they all saw India in a different perspective, an India which is secular, democratic India. तो मैं कुछ excerpt पढ़ के सुनाऊंगा from the article. This is of course in the Hindu. और कमाल की बात क्या, उनके ऊपर जितना रिसर्च हुआ है, कुछ लोग हैं जिन्होंने they have taken out his jail diaries. They have 23 years he died, and 16 years to 23 years he was a revolutionary. So उस टाइम का जो है his life, the interviews and research that has taken place, तो उसके बारे में है. So this is, ये मिस्टर लाल हैं जिन्होंने लाइफ एंड लेजेंड ऑफ भगत सिंह, एंड ही हैज रिटन नंबर ऑफ बुक्स ऑन शहीद भगत सिंह, उनके ऊपर उन्होंने लिखा है. So he says भगत सिंह was a prolific writer and a prolific reader. उस जमाने में पढ़ना, आज मैं आप लोगों से बात करता हूं, आप मेरे से कहते हैं सर बुक सजेस्ट कर दो. नॉट मेनी पीपल रीड. घर में किताब ही नहीं खरीदी, नहीं बुक ही नहीं खरीदी. एंड दिस मैन
at that young age, as a college student, was a well-read person, and he could write very well. He could write very well. So his first essay was written in in 1923, was when he was 16 years old. पहला essay उन्होंने लिखा था 1923 में, when he was 16 years old. By the time he wrote his last letter to his comrades jail on March 22nd, a day before his executed, he had penned more than 130 letters, petitions, statements, essays, apart from writing 100+ pages of jail notebook. तो 130 essay, letter, petition, statement he had written from 16 years to 23 years. और मैं कितना बोलता हूं आप लोगों को, लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो. लिख वो सकता है जो पढ़ता है, जो पढ़ता नहीं है वो नहीं लिख सकता. जो नहीं पढ़ता है वो नहीं लिख सकता. सो बिकॉज यू नीड टू हैव, वेदर आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, पंजाबी में लिखो, तमिल अपनी भाषा में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो ही रोट over 130 letters, petitions, statements, and about 100 pages of his jail notebook. So this was Bhagat Singh, Bharat ke Krantikari, Shahid-e-Azam. So please read about him. Please read about him. And if you feel inspired by him, try to follow few of his teachings. Here is another thing. We can pay homage to him by upholding his ideas, listening to Bhagat Singh. तो मैं एक दो एक्सर्ट पढ़ाता हूं, आपको पढ़ के सुनाऊंगा उनके बारे में. He, that is Bhagat Singh, gave his life to uphold the cherished ideals of socialism, equality, prosperity, and peace. Socialism, equality, prosperity, and peace. He wanted to organize the construction of the whole society on the socialist basis. He was absolutely right, and we can say without a shred of doubt that if humanity is to survive, the system based on greed and divisions has to be replaced by a system based on cooperation and harmony. Later on he says, the writer says, in our national life, Shahid Bhagat Singh has come to occupy a unique position as a symbol of patriotism and sacrifice. He is a martyr for the cause of workers, peasants, and youth. Forces of reaction, divisiveness, and strife are trying hard to appropriate the legacy of Bhagat Singh by distorting his image. Bhagat Singh was a revolutionary thinker and secularism was in his blood. By taking the words of Bhagat Singh to the people, we must ensure that every Indian knows what his martyrdom meant and what he sacrificed life for. तो मैं भगत सिंह को जो है आज से नहीं जानता हूं, जब डीपी बननी शुरू हुई और लोगों को पता चलना हुआ. As a young child, I read about Bhagat Singh in school. And this essay of his, Why I am an atheist, inspired me to a great extent for following the path of atheism. ठीक है. तो ये पढ़ लेना. तो ये है, कल मैं तैयार था बट वो टेक्निकल ग्लिच हो गया, अब कर नहीं पाए. Now we will take other parts of the कल के पेपर थोड़ा सा कवर करूंगा, फिर I'll come today, then I'll take your question संभाल के रखना. There is no worry. Climate of gloom. It is raining all over India last 4-5 days. हम पटना में थे, वहां बारिश हो रही थी, गुड़गांव में बारिश हो रही थी, कहीं ओले गिर रहे थे. So what it is going to do? Unseasonal rainfall and heat surges are threatening the rabi crop. This year the producers will have to take the hit. ये बहुत जरूरी है समझना. ये rabi crop है, गेहूं की crop. And unseasonal rain, अगर flat हो गया गेहूं गया. If गेहूं फ्लैट हो गया, हवा चल पड़ी, गेहूं गया. और क्या हो रहा है? अनसीजनल रेन हो रही है और बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, गर्मी जल्दी हो रही है. सो द ग्रेन गेहूं का जो दाना जो धीरे धीरे पकना चाहिए, 1-1.5 महीने की गर्मी सहनी चाहिए, उसको जलना चाहिए, सोना बनना चाहिए, सोने की तरह चमकना चाहिए, वो जल्दी पक के मुरझा जाता है. उसमें वो पोटेंसी नहीं है, वो न्यूट्रिशन नहीं. सो दिस, please read about this, especially many of you come from villages. If the IU asks you what is rabi crop, what is the problem of wheat, overheating, unseasonal rain, पता होना चाहिए. कहीं बोलो sir I don't know. ठीक है. Now this is a path breaking legislature, right to health. Rajasthan bill is welcome, ticks several boxes. Challenge will be to take private sector along. So this has got a thumbs up from all the editorials. This is a new initiative. It did not happen earlier in any state. Let's see how it succeeds. Now,
ये बहुत बढ़िया हैप्पीनेस पैराडॉक्स है. रिसेंटली दिस हैप्पीनेस इंडेक्स वाज रिलीज्ड एंड आपको पता है हमारी पोजीशन क्या है. बट मोर देन दैट, what the editor says is that countries which are supposed to be in the happiest zone, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, ये कहते हैं बहुत हैप्पी हैं, लोग पिकनिक में रहते हैं, मजे करते हैं, वहां लड़ते नहीं है, रॉयट्स नहीं है, एक दूसरे के हेट नहीं है. बट ही सेज द पैराडॉक्स इज these countries also have maximum consumption of एंटी डिप्रेसेंट. जो डिप्रेशन में दवाई ली जाती है वो सारा कंजम्पशन ही वहीं पे. सो हु इज हैप्पी वन डजंट नो. सो दीज रिपोर्ट्स मस्ट बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. ठीक है, इससे ज्यादा हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है. दे मस्ट बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. सो पढ़ लो बस. नाउ दिस इज ऑन पंजाब. You can see this is all red and caricature of this person. तो alarm bell in Punjab, I am following this very closely और रोज मैं कवर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए. Punjab police has not been able to arrest the fugitive. So, but the larger issue is, are we back to the 80s? Are we back to the 80s? That is what people are asking. The sense of Mr. Pramod Kumar, the writer, is no. And I tend to agree with him because 80s was different time, different era, different kind of support the ISI could give. The borders were open, there was no border fence, and now it's not possible. And Bhindranwale had become much larger than life. Bhindranwale he had already captured the Golden Temple. He had already shifted into the Golden Temple, and SGPC had become secondary before all this happened. But now the government has acted, and I think there is total unison between the state government and the central government. So let us wait and watch क्या होता है इस स्पेस में. So this was on कल की न्यूज का थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल था. यस, ये पूरा डिटेल दिया हुआ है. ये राजस्थान का राइट टू हेल्थ बिल का प्रोविजन क्या है इसमें, एंड व्हाई द डॉक्टर्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर अपोजिंग इट. उसका पूरा दिया हुआ है. एंड दिस इज अबाउट द हाई सीज ट्रीटी. नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट दोज हु से कि सर मैंने नेवी में जाना है या समथिंग, यू कैन बी आस्क्ड व्हाट इज दिस ट्रीटी. दिस इज अ पाथ ब्रेकिंग ट्रीटी. The nations of the world have agreed on a framework for the conservation and sustainable use of resources in open oceans that lie beyond national territorial jurisdictions. ये EEZ मैंने एक बार बताया था. What are territorial waters? What are territorial waters? What is EEZ? And what are open oceans? So now the countries of the world have agreed कि open oceans में भी we must take care of the fish, the flora, the fauna, and the marine life that is there. So that is on this. So then I have this, of course I've covered. Hindu ne bahut, and hats off to this Mr. Lal, who has done so much of extensive research on this great son of Mother India, that is Shahid Bhagat Singh. Now protest in France, you are aware of the pension, but Macron is going ahead. ये pension bill पूरी दुनिया में प्रॉब्लम हो रही है. पूरी दुनिया में प्रॉब्लम हो रही है. आप अगर आ गया ये डिबेट के लिए या डिस्कशन के लिए टॉपिक पेंशन बिल, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज आर यू गोइंग टू यूज? क्या लॉजिक आप क्या यूज करोगे? हो क्या रहा है कि पीपल आर लिविंग लॉन्गर. पहले हमारे एटलीस्ट सोल्जर्स रिटायर्ड 30-35 में तो घर वापस आ जाते थे 15-17 साल नौकरी करके. सुबेदार मेजर वुड रिटायर एट 48-49, मैक्सिमम ऑनरी कैप्टन 50 years. ऑफिसर वुड रिटायर एट 52, कर्नल 52. Now, because life expectancy has gone much beyond, so people are drawing pension till much later. 90, 95, 100 भी हो रहे हैं लोग. तो पेंशन बिल बढ़ता जा रहा है हर ऑर्गेनाइजेशन में. ये सब इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है, फ्रांस में ही प्रॉब्लम. So governments are trying to find. That is why the new pension scheme came up, and now we are going back to OPS. तो ये फ्रांस में चल रहा है. And this of course synthesis IPCC, इसके बारे में आज भी है, मैं बताऊंगा. एक क्लाइमेट चेंज के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू इट इज. अगेन ओल्ड पेंशन स्कीम उसके ऊपर है. सो आज के अखबार में भी है. आई विल कवर व्हाट इज द मिडवे. द इंटरेस्टिंग डिबेट दैट हैज स्टार्टेड इन द कंट्री व्हिच यू शुड नो इज abolition is the way.
This is on death penalty. Supreme Court has accepted a petition on can we hang people instead of hanging. Can we find some other way of death sentence? Some other way is a lethal injection, an electric chair, or a gas chamber, or something else. So other than hanging by the noose. So this noose hanging has been going on for many decades and years. So there is a debate on this. So what happens when a debate like this takes place? Even the death penalty comes under question. Should we have death penalty? Or should we have just imprisonment? Ki you will never be out of prison, you will die in the prison. Is that the way? So there is a question mark on the issue. Is the death penalty itself, not merely the method of execution. तो मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन की छोड़ो, आप डेथ पेनल्टी पे बात करो. सो देयर इज एन एडिटोरियल ऑन दिस. ठीक है, चलो. एंड ऑफ कोर्स यू आर सीइंग दिस हैपन. Japanese Prime Minister went to Kiev when Xi Jinping was in Russia. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है. मैंने परसों भी कवर किया था, आज फिर कवर करूंगा. The dynamics of the relationship between Russia and France and India की क्या हालत है उसमें, इंडिया का क्या स्टैंड है, what India can do. This will be a good topic for you all to study. Now, this is of course yesterday's Times of India, the hanging question. Supreme Court query on method of carrying out death penalty is necessary, as is a look at trial court's verdicts. So again, they are saying about the verdict also. A lot of verdicts are given. It should be in the rarest of the rarest crimes that you put somebody to gallows. So uske upar bhi baat hai. Then of course this is on the health bill. Rajasthan, again a thumbs up by another newspaper. This is of course the issue जो हम बहुत cover करते हैं, tremors from Himalayas. ये जो अभी 2 दिन पहले the massive shaking of the earth that was taking place from Hindu Kush mountains, Afghanistan, Pakistan, 12-13 लोग मरे भी हैं वहाँ. And right up to Uttarakhand to Delhi and these areas, Punjab, Haryana were affected. So this means this is one huge plate that is shaking. So this writer is talking about Uttarakhand. वहां पर भी ये काफी खतरा बना हुआ है earthquake का. So she's saying this broadening of the road for Char Dham Yatra from 5.5 meters, which was the environmentalists had agreed is the optimum width we must have of the roads, to 12 meters is catastrophic. This is what they say. ये मैंने अपनी क्लास में भी कवर किया था. पूरा 5.5 कितना होता है, 12 मीटर से कितना हमें काटना पड़ता है. So when you start cutting, blasting young mountains, so the trees just give way and earth is loose. आप समझो Himalayas are young mountains. Himalayas क्या है, बहुत ही नौजवान पहाड़ है, young mountains है. Unlike the Aravallis and Vindhyas and Western Ghat, Eastern Ghat जो देश के पुराने, वो सॉलिड रॉक है. ये यंग है माउंटेन्स. मैंने कश्मीर में, लद्दाख में बहुत धक्के खा रखे हैं कॉन्वॉइज में. 1 मिनट में लैंडस्लाइड होती है, गड़ पत्थर गिरने शुरू होते हैं. इनफैक्ट हम जब पुंछ, रजौरी वगैरह में थे, ये एक हम ऑप्शन सोचा करते थे कि फायर सम मिसाइल्स इनटू अ हिल साइड एंड ट्रिगर अ लैंडस्लाइड. ये एक ऑप्शन होता था, वॉर का ऑप्शन होता था कि फायर अ मिसाइल ऑन द हिल साइड एंड ट्रिगर अ लैंडस्लाइड. अगर आपको एनिमी को रोकना है और अगर आपको एनिमी के एरिया में उसके एडवांस को करना है तो. बट सो दीज आर यंग माउंटेन्स एंड सो शी इज सेइंग कि प्रोसीड विद कॉशन, रिस्क ऑफ हिल कटिंग इज वेरी वेरी डेंजरस. एंड आई सॉ दिस इन नैनीताल. मैंने देखा भी था ये होते हुए नैनीताल में. लास्ट ईयर व्हेन आई वाज देयर इन समर, बारिश में बहुत जबरदस्त बारिश हुई थी. नैनीताल वाज ऑलमोस्ट फ्लडेड. सो फ्रेंड्स, ये सो दैट नथिंग इज लॉस्ट. एक दिन नहीं आए तो हम आपकी लर्निंग में कमी नहीं होनी चाहिए. तो नाउ वी कम स्ट्रेट टू टुडेज न्यूज़पेपर. दिस इज एडिटोरियल, रशियन बैले चाइनीज स्टेप्स. रशिया इज गुड इन बैले एंड चाइनीज स्टेप्स. और उसी के ऊपर है टू टुगेदर. तो नाउ इफ यू रीड द फाइन प्रिंट, मॉस्को समिट रीइंफोर्सेस Xi Jinping and Putin alliance, diminishes strategic space available to India. Because आपको पता हमारी relationship कितनी adversarial है चाइना के साथ. After 3 years, we had one junior MEA officer going there for a meeting on border roads.
prime ministers are not talking, who are meeting so often. Foreign ministers have met very recently for a very short while. So in that case, the Xi Putin summit and the consequent joint statement have two global strategic implications. समझो, दो global strategic implications. This is what the writer is saying. One for the West and one for India. तो दो implication है, West के लिए क्या है, India के लिए क्या, समझ लो. For the West, it should henceforth become clear that China will loath to see Russia fail in Ukraine. ये बहुत बड़ी बात है. ये मैंने उस दिन कवर किया था कि चाइना नाउ डज नॉट वांट वॉर टू एंड. चाइना का फायदा नहीं है लड़ाई खत्म कराने में, ठीक है. एंड चाइना कैन नॉट एक्सेप्ट रशियन डिफीट. ये भी आप समझ लोगे, ठीक है. After so much investment by China and Xi in Russia and Putin, it will be naive to expect China to idly stand by and not take sides in the Ukraine conflict. So if Russia starts to lose the war, will China step in? ये द राइटर इज सेइंग कि अब चाइना जो है इतना इन्वेस्ट कर दिया, उन्हें पार्टनरशिप पे, दोस्ती पे, वाहवाही पे, ये वो 3 दिन रह के आए वहां, उनकी हॉस्पिटैलिटी, मेजबानी का मजा लिया उन्होंने. अब वो जो है लड़ाई में, तो दे मे टेक साइड्स लेटर ऑन. दिस विल अफेक्ट द फ्यूचर ट्रेजेक्टरी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है. फॉर इंडिया दिस डिमिनिशेस का मतलब कम हो जाना, द स्ट्रेटेजिक स्पेस अवेलेबल टू इट एंड कॉम्प्लिकेट द सिक्योरिटी एनवायरमेंट इन वेज प्रीवियसली नॉट इमेजिन्ड. जो पहले हमने सोचा नहीं था वैसा कुछ हो सकता है स्ट्रेटेजिक स्पेस में, बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप दैट इज फॉर्मिंग अप. एंड हियर इट इज, two together, Xi's visit was diplomatic morale booster for Putin. For India, Moscow is cozying up to Beijing presents challenges. और हो क्या रहा है आप देखो, how China dealing with, how China seeing. For a moment आप सोचो, we had clashes, उस पहले ढोकलम में हुआ, उसके बाद गलवान में हुआ, उसके बाद यांगसे में हुआ, अरुणाचल प्रदेश में. रिलेशनशिप एक्सेप्ट ट्रेड बहुत अच्छी चल रही है. इनफैक्ट ट्रेड तो बूम कर रही है इंडिया और चाइना की. पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इम्पास है, देयर इज नो दिस थिंग. एंड दे हैव मेड फ्रेंड्स विद रशिया, एंड चाइना के, पाकिस्तान के साथ उनकी है ही है. और हमसे एटलीस्ट वी वर अपियरिंग टू बी गुड फ्रेंड्स बिकॉज द हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट वर मीटिंग सो ऑफन. इतने अच्छे उनके ताल्लुकात लग रहे थे देखने से कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. सो दिस थोड़ा सा मुझे इसमें, we will have to have deft diplomacy and steer the course as per circumstances and our national interests. Okay. Now this is in today's paper. It was covered yesterday also, but this is the entire speech given by the Chief Justice of India in the last these awards, Indian Express Awards. ये बहुत important है what the Chief Justice of India has to say on this particular thing. You know, Indian Express, the way they write, and they allow everyone from both spectrums to write on the paper. What he says, the Chief Justice of India says, he is spoken on two things. एक तो free press, secondly spoken on fake news. दो चीजों को Chief Justice of India ने highlight किया. तो journalism pe he says, the Chief Justice says, many journalists both in our country as well as across work in difficult and unfriendly conditions, ठीक है, but they are relentless in face of adversity and opposition. It is precisely this quality which must not be lost. कि they should be so free because so difficult to get news. जंगलों में जाना पड़ता है, पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं, कहाँ इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, बहुत टफ जॉब है. So they should be allowed to do what they are doing. As citizens, we may not agree with the approach. You may not agree with the journalist. You can say, I don't agree with you. ठीक है? You can say to anyone, I don't agree with you. But he says, I myself don't agree to so many journalists. After all, who amongst us agrees with all other people? कि हम सबकी तो नहीं मानते ना बात. हमें कोई अच्छा लगता है, किसी की नहीं लगती, तो ठीक है, पर्सनल चॉइस है. But disagreement must not distort into hatred, and hatred must not be permitted to evolve into violence. ये जबरदस्त बात है कि अगर आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगती, should not result into hatred, and hatred should not be the next stage is violence. तो पहली बात ये कही, बहुत हार्ड हिटिंग. दूसरी, ये spoke about fake news.
दूसरा, he has spoken about fake news. He says fake news can misguide millions of people at once. We saw recently Tamil Nadu and Bihar, one fake video. And this will be in direct contradiction with the fundamentals of democracy, which form the bedrock of our existence. Across the globe, fake news has the capability to create tensions between communities by misleading people. Therefore, to save the democratic values of fraternity, which can be damaged, if not destroyed, through biased reporting, there is a strong need to bridge a gap between truth and lie. तो सच और झूठ के बीच में जो एक फासला है फेक न्यूज जो क्रिएट कर देता है, उसको हमें ब्रिज करना चाहिए. सो ये बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कही, तो मैंने कहा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, बिकॉज दिस टॉपिक कैन बी अ ग्रुप डिस्कशन टॉपिक, इट कैन बी अ लेक्चरेट टॉपिक, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, और ये हमेशा ही रहता है, ये हमेशा ही रहता है. नाउ this is on European Union leaders set to endorse increase in defense assistance to Ukraine. आपको पता ही है वहां पे now all entire European Union, and though Britain is out of it, but they are also supporting, giving arms, weapons, all assistance possible to Ukraine, further creating the capability of Ukraine to fight Russia longer time. Then of course we have this Israel. There are massive crowds which are opposing the Israel government on the judicial reforms. Then you have this after China did this Iran and Saudi Arabia peace talks and agreement. Now Syria is also coming on board. And yesterday or today in many places of the world is the first holy day or first day of fasting of Ramadan, Ramazan, Joko. So entire Muslim world, this is the most important month, and we must understand the significance of this. So this month, Iran and Saudi Arabia have exchanged greetings. Syria has also joined. So therefore, there is a push for peace in Middle East. उसके ऊपर ये लिखा है. And there's a very interesting story here from Australia. I don't know how many of you know कि ऑस्ट्रेलिया के लोग कौन हैं. ये जो गोरे नजर आते हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में और उनकी हॉकी टीम में और हर जगह, ये कौन है? आर दे ऑस्ट्रेलियंस? नहीं, दे ऑल हैव कम फ्रॉम यूरोप. सो जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, कॉल्ड द एब्रोजिनल्स, उनके लिए फाइनली द ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट हैज आस्क्ड फॉर अ रेफरेंडम, एंड दिस प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज, ही इज पुशिंग फॉर दिस कि इनको, दे आर वेरी स्मॉल, just 3% or 3.5% of population of Australia, but they have no education, they have lack of jobs, their families are disrupted. They, मतलब ये आप सोच लो कि हमारे आदिवासी, हमारे जो आदिवासी ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है इंडियन प्लेटू का, ये जिस प्लेटू पे हम रहते हैं इसके ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कौन है? आदिवासी, क्योंकि वहीं रहे हैं, ये हजार साल से वहीं रहे, और जितने पावर आए गए आदिवासी को किसने बोला अपना करो, they didn't disturb their life. So like that is this original inhabitants of Australia. उनको finally एक referendum से they will be given more say in future. That is the lovely story from Australia, and the Prime Minister had tears in his eyes when he was addressing the press on this. Okay, now I thought I'll share something very interesting. ये टाइम्स ऑफ इंडिया का कई बार सर्वे बहुत पसंद आता है. They come out with this, and this is generally in the back flap. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ तो वी आर द आईटी हब ऑफ द वर्ल्ड, गूगल देख लो आप, और क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट और इन्फोसिस एंड ऑल द टॉप कंपनीज, टीसीएस, माइंडट्री, और दुनिया भर की हैं, सिस्को दुनिया में, वो सब के सब मेन प्लेयर वहां इंडियंस है. आवर ब्रेन्स है ना, वी आर गुड इन कोडिंग, वी आर वेरी गुड इन दिस कंप्यूटर थिंग, बट जो एक्चुअल कंडीशन है इंडिया में कंप्यूटर लिटरेसी की बहुत भयानक है, ठीक है. तो ये मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स देता हूं. दिस इज कवर्ड कि एट वन टाइम वी आर टॉकिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्मार्ट कार्स. स्मार्ट कार चलेंगी बिना ड्राइवर के. आई बिलीव सैन फ्रांसिस्को में तो आपको काफी कारें घूमती मिल जाएंगी कि ड्राइवर है नहीं,
और को ड्राइवर बैठा आराम से चिप्स खा रहा है और गाड़ी चल रही है इधर उधर। तो बहुत गाड़ियां घूमती हैं वहां ऐसे, ठीक है। तो बट हमारी जो डिजिटल वर्ल्ड की नॉलेज है इंडिया की, वो थोड़ी सी वीक है। सो ही सेज दैट large number of Indians cannot even send an email attachment, कि ईमेल खोल के उसमें कहाँ पे वो बटन होता है, आइकॉन होता है, जिसको आप प्रेस करके अपने कंप्यूटर से, अपनी हार्ड ड्राइव से या अपने माई डॉक्यूमेंट से कोई पीपीटी, कोई डॉक्यूमेंट, कोई फोटो, कुछ भी आप शेयर नहीं कर सकते। देन इसे 3 out of 4 can't install and configure software. कॉपिंग एंड पेस्टिंग नहीं आता। 9 out of every 10 women and between 15 to 29 ईयर, जो हम सब समझते टेकीज हैं, 15 से 29 साल, जो फोन पे रहते हैं सारे दिन, दे डोंट नो हाउ टू कॉपी एंड पेस्ट। उनको कोई अच्छा आर्टिकल मिला, कोई चीज कॉपी करके पेस्ट करना नहीं आता। प्रेजेंटेशन स्किल्स, यस, ये मैं आपको दिखाना चाहता था, और आप तो सब ऑफिसर बनना चाहते हैं, और यही हम बीओसीसी कोर्स में काफी कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स, खड़े होके बात करना, अपनी पीपीटी दिखाना बोर्ड के ऊपर, स्मार्ट बोर्ड पे बताना, सर लुक एट दिस पाई चार्ट, लुक एट दिस ग्राफ। दे से क्रिएटिंग प्रेजेंटेशंस इज इंपॉर्टेंट जॉब स्किल, बट ओनली 1 in every 10 इंडियंस हैज इट। तो आप तो ये सीख लो, तो वैसे ही यू विल ब्रेक द ग्लास सीलिंग इन विच एवर जॉब यू डू, बिकॉज 1 in 10 इंडियंस कैन डू प्रेजेंटेशन। दिस इज वेरी सब। और ये मैं मेरी एज के लोगों की बात नहीं कर रहा जो कंप्यूटर को देख के डरते हैं काफी, ये मैं बात कर रहा हूं 15 से 29 साल के नौजवान लड़के लड़कियों का हाल है ये। सो जिसमें कि केरला इज द बेस्ट, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये देखो साउथ इंडिया, ये आगे। उसके बाद देन झारखंड, असम, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार बिल्कुल डाउन इन ऑल पैरामीटर्स। यू विल सी राजस्थान, ये बीमारू स्टेट्स सब चीजों में पीछे। तो ये मैंने कहा बता दूं आपको, ये आप यूज कर सकते हो डिस्कशन अगर हो रहा है किसी टॉपिक पे, इस टाइप का डेटा, कि अभी भी हमारे यहाँ बहुत स्मार्टफोन्स की जो पेनिट्रेशन है बहुत कम है। बहुत एरियाज में अभी तक 2G नहीं अच्छे से मिलता है, कई एरियाज में 5G आ गया है, आ रहा है, फिर 6G की बात कर रहे हैं। सो वी लिव इन डिफरेंट ब्रैकेट्स। एक और थी न्यूज आई वांटेड टू शेयर विद यू, एंड this. Here. There are 2 things I wanted to share. 2 चीजें हैं, दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले ये लेता हूं ट्राइडेंट के बारे में। This writer, there are 2 writers, Manish Sabharwal and Ashish Dhawan. They are of course co-founders of Team Lee Services and Ashoka University. अच्छा, अशोका यूनिवर्सिटी भी इन्होंने फाइंड किया, तो ये पहुंचे लोग हैं। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कारण है 1930 के बाद किसी भी भारतीय को भारत में रहते हुए नोबेल प्राइज साइंस के लिए नहीं मिला? तो दे से व्हाट इज द रीजन इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड नो नोबेल प्राइज विनर सिंस सीवी रामन इन 1930, नो मिरेकल ड्रग फॉर ट्रॉपिकल डिसीज, few globally ranked universities, only occupational publication in best, and yet the innate abilities and talents of India is palpable. Why have we not harnessed our strengths into deliverables? ये इशू है, ये है इशू। ये अंडरलाइन कर लो कि जो हमारी ताकत है, हमारा बेस्ट ब्रेन है, सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है, हर जगह चैंपियन बन रहे हैं, बट क्यों हम कुछ डिलीवर नहीं कर पाए? इतनी IITs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज हैं, NITs हैं, सरकार खर्च करती है हजारों करोड़ रुपए एक अच्छा इंजीनियर बनाने के लिए, बट क्या कारण है कि हमारे पास कोई अच्छा पेटेंट नहीं है? जो चीज निकलती है वेस्ट से आती है। सो व्हाट दे आर रिकमेंडिंग, तो वेस्ट का जो मॉडल है वो मॉडल है जहां द एकेडमिया, इंडस्ट्री एंड फंडिंग, ये तीनों काम करते हैं। ये दैट इज द ट्राइडेंट। दे आर सेइंग साइलोज में मत काम करो। साइलो का मतलब नया वर्ड है, समझ लो, बहुत यूज होता है साइलो है मैं अपने जगह, मैं लगा हूं साइंटिस्ट हूं, मैं अपने पेपर पब्लिश कर लूंगा, प्रोफेसर लग जाऊंगा, थैंक यू वेरी मच। साइलो, मुझे पता नहीं बाहर क्या हो रहा है। अपने वाटर टाइट कंपार्टमेंट भी कहते हैं उसको, फौज में बहुत यूज करते हैं। साइलोज होते हैं जिसमें अनाज रखा जाता है बंद करके, तो साइलोज में काम करते हैं। देन इट सेज
वी शुड हैव ए ट्राइडेंट अप्रोच, जहां पे क्लस्टर होना चाहिए। क्लस्टर होता है जहां काफी चीजें इकट्ठी हो। तो आईआईटी भी हो, इंडस्ट्री भी हो, फंडिंग की सुविधा भी हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सुविधा हो, सो देन वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर। तो ये उस पे था। नाउ वी कम टू द हिंदू। फिर क्वेश्चंस लूंगा। आज हाई एनर्जी सेशन है, प्लीज लाइक कर दो अभी से सेशन, ठीक है। हाई एनर्जी सेशन है बिल्कुल, एंड खूब बात करूंगा अभी आप लोगों से। ये तमिलनाडु असेंबली में ये गेमिंग के ऊपर मैंने क्लास भी ली थी। अगेन दे हैव पास द रेजोल्यूशन ऑन गेमिंग and the governor didn't allow the sign last time, so let's see what happens. Again the issue of governor versus the chief minister. Okay, now here we come. Climate change survival guide to act on the old and the new, a combination of features of the, हाँ ये पेंशन बिल का बहुत ही बैलेंस्ड एडिटोरियल है। ये वाला, ये जो है, ये पेंशन बिल का बहुत ही बैलेंस एडिटोरियल है, बिकॉज ये मुद्दा बहुत बड़ा बनता जा रहा है। और गवर्नमेंट ने पे, समझो क्या है, गवर्नमेंट ने 6th पे कमीशन के बाद इतनी पे बढ़ गई एम्प्लॉयज की, थिंकिंग इनको पेंशन देना नहीं, इनको पे दे दो, उसमें से कुछ पोर्शन ही अपनी पेंशन के उसमें डाल देंगे। तो पे बढ़ गई, अब पेंशन ले ली वापस की, कॉन्ट्रीब्यूट। नाउ पीपल आर रीइंस्टेटिंग द ओल्ड पेंशन। तो इतना आसान नहीं है, इसका फिजिकली प्रूडेंट होना बहुत जरूरी है सरकार के लिए। This money that we collect is very, very important. Taxation. It can't be everything given away like this. So, ये मुद्दा जो है, so they say a combination of the two may be an answer. Okay, this is again, since yesterday was Shahidi Divas, a very nice article written by C.R. Keswan. No slander, please. They are our freedom fighters first. और ये मैं बहुत बार अपने बच्चों क्लास में कहता हूँ, बहुत बच्चों को। If you like Bhagat Singh, doesn't mean you'll criticize somebody else. So he has given a very, very nice analysis, exactly जो मैं बात करता रहा हूं अपने YouTube पे, अपनी क्लासेस में। A freedom fighter is a freedom fighter. ठीक है, किसी ने कोई रास्ता अपनाया, किसी ने कोई रास्ता अपनाया। इमेजिन 1919 में, कब, 1919 में महात्मा गांधी जी तमिलनाडु गए थे टू फाइट एट द इन्विटेशन ऑफ कस्तूरी रंगा अयंगर to counter the Rowlatt Act established by the British. And then 1922 he went to jail. उन्होंने सत्याग्रह लॉन्च किया अगेंस्ट द रॉयलेट एक्ट। ब्रिटिश ने बोला जी आप तो देशद्रोह कर रहे हो। बोला यस मिस्टर मैजिस्ट्रेट। महात्मा गांधी said yes, I am guilty as per your law. He says I know you're I shouldn't, but I am bound, and he was given 6 years imprisonment. तो तब के वहां से लेके जैसे then he's talking of Subhash Chandra Bose, Jawaharlal Nehru, B.R. Ambedkar, Gopal Krishna Gokhale, Veer Savarkar, many people, जिनकी तो स्लैंडर नहीं कर सकते हम फ्रीडम फाइटर को। 1857 से लेके 1947 तक everyone has contributed something or the other. ये मैसेज है इस आर्टिकल का, और यही मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं, ठीक है। बट above all is father of the nation Mahatma Gandhi, ठीक है, above all, because his struggle, living a great job in South Africa. He was a barrister, पढ़ा लिखा आदमी था, he was a barrister from England and went to fight a case there. वहां got an award for supporting the British in the Boer War, but then saw this apartheid वहां पे and got disgusted कि यार मैं black man, मैं first class में travel भी नहीं करता, जबकि I earn well. And then he got kicked out of a train and decided to come to India, travel in 3rd class compartment across India. धोती पहन के, सूट छोड़ दिया, टाई सूट सब कुछ. He was well off. He was a well off person. उस जमाने का पढ़ा लिखा बैरिस्टर था. And then struggled so many time, agitations and fast to death, and so many years he spent in jail. And then you see, so never ever slander a freedom fighter. That is the message I have for all of you. Okay, the last issue I want to discuss is here. Is India in the grip of a stray dog crisis?
ये बहुत सीरियस मुद्दा हो गया, क्योंकि मैं बिल्कुल अपने घर के बाहर भी ये मुद्दा रोज देखता हूँ. लॉट ऑफ चिल्ड्रन, एल्डर्स आर बिटन बाय डॉग्स, एंड डॉग बाइट केसेस हैव रियली रीच्ड ह्यूमंगस प्रोपोर्शन. एंड दूसरी तरफ से हमारे कानून ऐसे बन गए, पेटा से, एनिमल राइट से, इनको आप रिलोकेट नहीं करते, यू कैन नॉट स्टॉप एनीवन फ्रॉम फीडिंग, ये इनकी जगह है, दे हैव टू स्टे हियर. सो दिस हैज बिकम, dogs are occupying the urban landscape very seriously. And I saw this in Leh Ladakh also. Even in Siachen base camp, the dogs have become very ferocious and dangerous. Siachen base camp पे लेह में आप रात को निकल नहीं सकते अकेले. You have to have a डंडा and a torch and move in बड़ी पेयर की, पता नहीं कौन सा डॉग आपको अटैक कर लेगा. So this is an issue. So they have compared कि ऐसी क्या बात है कि हमारी सड़कों पे कुत्ते घूम रहे हैं, हमारे गलियों में, हमारे हर जगह. Why not in other countries? So they say, उसने एग्जांपल दिया यूएस का. Why we have, मैं यूरोप में घूमा हूँ, यूएस पे गया हूँ, मैंने कोई कुत्ता नहीं घूमता देखा गलियों में. आई हैव नेवर सीन a stray animal on the street कि ऐसे घूम रहे हैं जानवर इसमें. Because they say in the US, either you have a pet, if that it is not pet, then they every year they euthanize या मार देते हैं उनको about 1.5 or I don't know how many million dogs, cats are killed every year systematically. But you can't be on the road, either you be in pets. तो ये जो मुद्दा है आगे, how we are going to deal the municipal committees, the laws, the nation has to find an answer to the dog menace. It is serious, it is alarming, it is a health hazard. This is of course on India's push for semiconductors. ये issue बहुत important है. आपको पता है semiconductors की requirement. Today every piece of gadget, कार से लेके हवाई जहाज का इंजन, हवाई जहाज और मोबाइल फोन और लैपटॉप, everything has to have semiconductors and integrated circuits. So how India can do? The world is now slowly want to reduce dependence on China, and we should be the lead players in this. So let's see. There's a good article on India's push for semiconductors. Then we have Know Your English and Word of the Day, repudiate. Then you have the union budget passed without any discussion, because both the houses of parliament are not functioning. Okay, so we finish here. Now I'll take your questions. So good to see you all. Anuj Kumar Mishra, sir, my date of birth is so and so. Please tell me how many chances. अनुज, मुझे नहीं पता भी, मैं रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट में नहीं हूँ. प्लीज अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो आप टेलीग्राम में पूछ लो या खुद इंडियन आर्मी की साइट पे देख लो. इफ यू एक्सपेक्ट मी टू आंसर दिस कि मेरे कितने चांस बचे हैं सीडीएस के. ओके, थैंक यू वंश. जय शर्मा, पाकिस्तान नहीं गए, पाकिस्तान बॉर्डर पे है ये. दे वर हैंग्ड इन लाहौर बट देयर बॉडीज वर ब्रॉट हियर and cremated on the banks of Ravi River. ठीक है, तो happy Navratri to everyone. Hemant Kumar, sir, what do you think how India can make good relations small neighbor countries by tourism? Yeah, India, we have to have good relations with countries in our neighborhood first. So which includes Pakistan से तो हो नहीं सकते, but at least बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, इनके साथ बहुत जरूरी. And then just across Indonesia, Malaysia, Laos, इनके साथ भी. माधव सिंह, एनडीए एस्पायरेंट. माधव सिंह ही रखो नाम. एनडीए ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग. मैं तो कहता हूं कोई कोचिंग नहीं, खुद पढ़ो. जस्ट गाइडेंस की जरूरत होती है. जो सीरियस कैंडिडेट होता है उसको गाइडेंस की जरूरत है. और ये लास्ट चांस है तो कोई बात नहीं, फिर सीडीएस की तैयारी करना. गौरंग मल्होत्रा, सर, कैन अमृतपाल्स कस्टडी लीड टू वायलेंस इन पंजाब, अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया? डज पंजाब नीड प्रेसिडेंट रूल? नो नो नो. व्हाई शुड इट नीड प्रेसिडेंट रूल? क्यों? इट्स द सेम. उसी पुलिस ने काम करना है भाई.
उसी पुलिस ने काम करना है। नो 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 नो, देयर इज नो स्कोप फॉर एनी प्रेसिडेंट्स रूल इन पंजाब। इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्शन जीत के आई है, मेजोरिटी के साथ करेंगे काम। थैंक यू विराट। इंडिया चाइना नो वॉर नो पीस, एन मैं हमेशा बताता हूँ, इंडिया पाकिस्तान ऑल्सो NWNP, नो वॉर नो पीस। ये हम बहुत यूज करते थे वर्ड जब फौज में थे, MWNP, नो वॉर नो पीस। तो ना लड़ाई है और ना ही पीस है। या आई विल लॉन्च माय करंट अफेयर सेशन करता हूं। या लो रिसर्च इन इंडिया, एवरीथिंग बेस्ड ऑन थ्योरी, एंड द क्वालिटी ऑफ आवर publications also is not that high. अमन, विच रैंक इज 2IC? कमांडिंग ऑफिसर, कंपनी कमांडर। देखो, कमांडिंग ऑफिसर होता है फुल कर्नल, कर्नल सिलेक्शन ग्रेड, बट कई छोटी यूनिट्स भी होती हैं, सप्लाई डिपो है, इंजीनियर की स्क्वाड्रन है, और बहुत छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिनमें 150-200 लोग हैं। उनमें कमांडिंग ऑफिसर कैन बी लेफ्टिनेंट कर्नल ऑल्सो। ठीक है, तो सीओ मोस्टली कर्नल मिलेगा या लेफ्टिनेंट कर्नल मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द यूनिट। 2IC, अगर लेफ्टिनेंट कर्नल सीओ है तो मेजर 2IC होगा, अगर कर्नल सीओ है तो लेफ्टिनेंट कर्नल 2IC होगा। क्लियर हो गया? एंड कंपनी कमांडर्स, स्क्वाड्रन कमांडर, बैटरी कमांडर, ऑल मेजर्स एंड लेफ्टिनेंट कर्नल्स ऑल्सो, जो 13 साल में टाइम स्केल बन गए। अभी आपका बोर्ड नहीं हुआ तो यू आर अ कंपनी कमांडर, स्क्वाड्रन कमांडर, बैटरी कमांडर। आई होप आई मेड इट क्लियर। अंजलि पाल, सर मेरी मैथ्स पूरी हो गई है, GAT नहीं हुआ, इतना कम दिन में NDA हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है अंजलि, बिल्कुल हो सकता है। हमारी तो लड़कियों ने 20 दिन में NDA क्लियर कर दिया था। UPSC IM में वीर, सर मेरा CDS का एग्जाम 16 को है। बहुत अच्छी बात है, गुड। कैडेट मनीष बेहरा, सर आई एम फ्रॉम BOCC 9 कोर्स। वेरी नाइस मनीष, तगड़ा रहो सर। आज असम राइफल्स का रेजिंग डे है, असम राइफल्स का रेजिंग डे आज। बट ये स्लोगन या मोटो असम रेजिमेंट का, प्लीज कंफ्यूज मत होना। असम रेजिमेंट, असम राइफल में बहुत फर्क है। असम रेजिमेंट एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट उसकी तरह। असम राइफल इज अ पैरामिलिट्री फोर्स। ओके अर्पित, अबाउट, थैंक यू अर्पिता। इंग्लिश स्पोकन कैसे ठीक करें? ज्वाइन द BOCC कोर्स, इट्स अ बेसिक ऑफिसर्स कम्युनिकेशन कोर्स। बहुत जबरदस्त चल रहा है BOCC 14 अभी कोर्स। वी हैव टू ब्लॉक द सीट्स, हमने बहुत रिक्वेस्ट बना किया है। नेक्स्ट कोर्स होगा अप्रैल में, तो उसके लिए अभी से तैयारी कर लो। IT K26, सर CDS 18 अगो भर सकते हैं क्या? 2 ईयर है सर गजुवते में। भाई इस इंग्लिश के साथ तो मत भरो। ये IT-K26, सर CDS 18 एगो फॉर्म भर सकते हैं क्या? और 2 ईयर है सर गाजुवतों में, तो भाई आप तो मत भरो। ठीक है, इसमें आपका कोई चांस नहीं है। इस तरीके के उसमें इस इंग्लिश के साथ तो कोई गुजारा हो नहीं सकता। फौजी अजय, ये हम, हाँ, जो कोर्स आज हम कर रहे हैं वो क्रैश कोर्स है, 6 दिन का कोर्स है। BOAC रिफ्रेशर कोर्स कह लो, क्रैश कोर्स कह लो, जहां रोज क्लास चलेंगी। और वहां अभी IO आ गए हैं, विंग कमांडर कृष्णामूर्ति, GTO और अपनी साइक हैं, और आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, आपको दोबारा से बताया जाएगा। आपको जो डाउट हो आप पूछ सकते हो उनसे, और क्लासेस होंगी। सो दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। Sir, can you explain role of ITBP in comparison with Army? देखो, ITBP is a Central Armed Police Force, CAPF, and it has the task of guarding the Indo-Tibetan border, that is border along Tibet and China border. ठीक है, when they are guarding the border, their role is just like the army. However, अगर लड़ाई छिड़ गई, they will be placed under army and they'll operate based on where the army wants to use them. ठीक है, जैसे BSF के साथ, तो हम ये कारगिल रिव्यू कमेटी के बाद हुआ था, 1 फोर्स 1 बॉर्डर। तो पंजाब बॉर्डर में पूरी BSF है, नॉर्थ ईस्ट पे BSF नहीं है, ITBP है, एंड असम राइफल्स है। सो 1 बॉर्डर 1 फोर्स, ये चीजें कोई नहीं बताएगा आपको, बट वहां बोल दोगे डिस्कशन वगैरह में तो छा जाओगे।
थैंक यू हर्षवर्धन। आजकल नहीं आ पा रहा हूँ, बोर्ड का एग्जाम है। जिशान कारगिल से। आज एक और लड़के ने मुझे कांटेक्ट किया द्रास से। थैंक यू सुमित, थैंक यू अशोक रेड्डी। इट वॉज गुड टू सी योर पेरेंट्स द अदर डे ऑन टेलीग्राम। मैंने लाइव किया, अशोक रेड्डी के फादर से बात हुई, इनकी मदर से बात हुई। बुक्स रिगार्डिंग मिलिट्री हिस्ट्री, कुछ भी पढ़ लो मिलिट्री हिस्ट्री। अब क्या बताऊं, आप पहले विलियम डैलरिम्पल पढ़ो, थोड़ा पता करो कि ब्रिटिश टाइम पे क्या मिलिट्री हिस्ट्री थी, देन ग्रेजुएट टू दिस। रवि शंकर मंडल, सर what kind of technical questions can we prepare for engineering stream in civil? भाई आपने सिविल इंजीनियरिंग करी, आपको पता होना चाहिए, बट दे विल लाइक टू नो कि आपकी बेसिक्स इंजीनियरिंग की हैं या नहीं। बहुत से बच्चे मुझे आईओ मिलते हैं, कहते हैं ये इंजीनियर्स तो हैं, कुछ नहीं आता इनको, दे आर अनएबल टू आंसर क्वेश्चंस ऑन देयर कोर इंजीनियरिंग जो करके आए। सो वो आपको पता होना चाहिए। ये जो क्रैश कोर्स है, ये तो दिस इज वेरी वेरी चीप। ये आप मेरी टीम से चेक कर लो, दिस इज मतलब ये तो ऑलमोस्ट फोकट का कोर्स है। डिफरेंस बिटवीन रेजिमेंट एंड बटालियन में बता चुका हूं पिछले इशू में, ठीक है। आर्मर्ड में हम रेजिमेंट बोलते हैं और इन्फेंट्री में इनमें बटालियन बोलते हैं, पहला तो वो है। दूसरा, एक पूरी यूनिट्स, एक बटालियन, जैसे गार्ड्स है मेरे 23 बटालियन है, उनको मिला के एक रेजिमेंट होगी। सो गार्ड्स की रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजरेफ रेजिमेंट, ऐसे है। बट आर्मर्ड कोर में हर यूनिट को रेजिमेंट कहते हैं, बाकी कोई फर्क नहीं। What is my view on Punjabi music on youth of this country? I don't know. ठीक है, एंजॉय करो। पंजाबी म्यूजिक तो बढ़िया होती है, सारे कोई पार्टी पूरी नहीं होती जब तक पंजाबी म्यूजिक ना बजे। हाउ कैन मस्ती राम जाट, सर हाउ कैन improve my vocabulary? You also should join the communication course. मस्ती राम कम्युनिकेशन कोर्स में आ जाओ और फिर हम आपको जो है पढ़ाएंगे और सिखाएंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच। पहले तो सेशन लाइक करो एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आप देखो 2 दिन की न्यूज ऑलमोस्ट घंटा हो गया। द एफर्ट इट टेक्स फॉर मी टू प्लान दिस फॉर यू, टू रीड द आर्टिकल्स वंस ट्वाइस, हाईलाइट कि क्या चीज बतानी है अपने बच्चों को, जिससे कि ये जो है आगे एसएसबी में या कहीं पर किसी ग्रुप डिस्कशन में मार ना खाए और फेक न्यूज से बच के रहे। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। वंश, मुस्कान, फौजी अजय, अच्छा फौजी अजय, हर्षवर्धन शेखावत एंड ऑल ऑफ यू, विराट, पीसी होम डिजाइन, गौरंग मल्होत्रा, ये अच्छे क्वेश्चन पूछता है गौरंग मल्होत्रा। ओके, जो नहीं है टेलीग्राम में, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप। देखता हूं अगर यहाँ पे है, नहीं इधर नहीं है। लेट मी सी इफ आई कैन शेयर माय टेलीग्राम ग्रुप टू यू नाउ, so that you can come on this channel and get all updates on courses और other activities। कौन सा कोर्स कब हो रहा है, मेरे जो लाइव सेशन होते हैं उसमें भी हम आपको, उसका भी हम बता सकते हैं आपको। थैंक यू, इट वाज अ ग्रेट सेशन, आई ऑल्सो एंजॉयड इट। ठीक है, एंड जो अच्छे बच्चे हैं दे विल ऑलवेज रिमेन इन पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, नेगेटिव चीजों से दूर रहो। ठीक है, चलो, अमन पिंटो, थैंक यू। अमन सिंह, थैंक यू। राहुल बिरहमान, राहुल बिरहमान, तो थैंक यू। पंकज भारद्वाज, जय हिंद। दीक्षा चौधरी, थैंक यू। रोहित, सोनू भंडारी, सुमेध, ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलो, गुड लक, हैव अ ग्रेट डे। गौरंग, सर आई हर्ड फ्रॉम एसएसबी रिपीटर दैट बीइंग वेजिटेरियन कैन बी हिंड्रेंस इन एसएसबी। ये कौन सिखाता है यार, ये कौन, किसकी सुनते हो? अभी मैं तारीफ कर रहा था कि गौरंग अच्छा क्वेश्चन पूछता है। प्लीज यार, ये बहुत जबरदस्त मिथ है। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, ड्रिंकर, नॉन ड्रिंकर का क्या लेना देना अभी सिलेक्शन से? सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस, दीज आर मिथ्स, इनका कोई मतलब नहीं। ठीक है, कोई भी मतलब नहीं इनका। ठीक है, सो अब रोज होगी क्लास एंड द कोर्स वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट टुडे। तो जिसने भी लेना है, यू कैन टेक दिस क्रैश कोर्स, और जिसको नहीं आइडिया एसएसबी का वो भी ले लो,
बिल्कुल भी अगर आइडिया नहीं है, आप चाहते हो चलो 5-6 दिन का कोर्स है, कर लेते हैं, पूरा आइडिया तो हो जाएगा, प्लस तैयारी कर सकते हैं कि आगे मैंने क्या क्या करना है, व्हाट डज इट रिक्वायर। अब मैं पटना में गया, बच्चों को पता ही नहीं था, प्रोसेस क्या है। आई वाज क्वाइट हॉरिफाइड। बैठे कोचिंग ले रहे हैं एनडीए की, सीडीएस की, बट दे हैड नो आइडिया, ब्लैंक थे एसएसबी के बारे में। फिर मैंने ब्लैक बोर्ड पे समझाया अगले दिन जाके कि स्क्रीनिंग क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। ठीक है, सो वो करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे गुड। ठीक है।